کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم۔ شہر آفاق سیاحتی مقام گلمرگ میں ونٹر کارنیول کا آغاز ہو گیا ہے۔ سیاحت سے جڑے لوگوں اور سرمائی کھیلوں سے منسلک کھلاڑیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ کرسمس کے مقدس تہوار کے موقع پر اس کا آغاز کیا گیا ہے۔ پیش ہے گلمرگ سے ہمارے نمائندے منیر حسین ہرا کی یہ رپورٹ۔ گلمرگ میں محکمہ سیاحت کی جانب سے سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ونٹر کارنیول کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ پروگرام 1 جنوری 2022 تک جاری رہے گا۔ سیکریٹری ٹورزم سرمد حفیظ اور ڈائریکٹر ٹورزم ڈاکٹر GN یتو نے کیک کاٹ کر اس ونٹر کارنیول کا آغاز کیا۔ زیادہ سے زیادہ سیاحوں کو گلمرگ کی جانب راغب کرنے، روزگار کے مواقع پیدا کرنے، سرمائی کھیلوں کے کھلاڑیوں اور فنکاروں کو بہتر پلیٹ فارم مہیا کرنے کے لیے محکمہ سیاحت نے اس جشن کا اہتمام کیا۔ ہمارے سیزن کا ایک ہم سوچتے ہیں کہ آغاز ہے۔ یہ ونٹر کارنیول جو ہے تھرو دا ونٹر کافی ایکٹیویٹیز ہوں گی، اور اس سال یہ فیصلہ کیا ہے سرکار نے کہ صرف گلمرگ نہیں لیکن ہماری جو باقی ونٹر ڈیسٹینیشنز ہیں وہ بھی کھلی رہیں گی۔ دس از دا اسٹارٹ آف دا سیزن، اے ویری آسپیشس اسٹارٹ، اور مجھے امید ہے تھرو ونٹر بہت اچھا چلے گا۔ یہ جو پروگرام آج کا ہمارا یہاں ہے، دس از این انویٹیشن ٹو پیپل آل اوور دا کنٹری، این انویٹیشن ٹو پیپل آل اوور دا ورلڈ ٹو کم اینڈ وزٹ دس بیوٹیفل ونٹر ونڈرلینڈ۔ ہم لوگوں نے کچھ نیشنل لیول بینڈس اور نیشنل لیول سیلیبریٹیز بھی پرفارم کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے لوکل یہاں آرٹسٹس ہیں، ینگسٹرس ہیں، لوکل بینڈس ہیں، ان کو بھی اب کی بار ہم نے جو ہے پرفارم کرنے کا موقع دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اینڈ آئی ایم شیور جو ٹورسٹس یہاں پہ آلریڈی ہے، دے ول ڈیفینیٹلی انجوائے دی سیلیبریشنز۔ لیٹس جوائن ٹوگیدر ٹو سیلیبریٹ کرسمس اینڈ نیو ایئر فیسٹیول۔ ونٹر کارنیول کے ایک حصے کے تحت گلمرگ میں موجود تاریخی گرجا گھر میں کرسمس کا تہوار بڑے عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ عیسائی برادری سے تعلق رکھنے والے عقیدت مندوں کے ساتھ ساتھ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں اور سیاحوں نے شرکت کی۔ پوری دنیا خاص کر وادی کشمیر میں امن و سلامتی اور کووڈ کے خاتمے کے لیے دعا کی گئی۔ پادریوں نے حضرت عیسیٰ کی سیرت پر روشنی ڈالی۔ سیاحوں نے گلمرگ کے اس تاریخی گرجا گھر میں کرسمس کا تہوار منانے پر خوشی کا اظہار کیا۔ اس عبادت گاہ کی نگہداشت برسوں سے مسلمان ہی کرتے آ رہے ہیں۔ دنیا میں شانتی آئے، پیار آئے، کیونکہ سب سے زیادہ اگر کوئی کمی ہے آج دنیا میں تو وہ پیار کی ہے، اور جو خدا کا وچن ہے، جو بائبل ہے، وہ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اگر ہمارے بیچ میں پیار ہے تو یہ سماج، یہ دنیا جو ہے وہ سب ساتھ مل کر چل سکتی ہے۔ ہر ایک کمیونٹی کے لوگ ہیں نا، مسلم ہیں، ہندو ہے، سکھ ہے، کرسچنز ہے، بھائی چارہ اتنا بڑھتا ہے اس کشمیر میں کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہر ایک انسان خوشی سے اپنی زندگی میں پریوار کے ساتھ خوش رہے۔ ہم پنجاب سے جہاں سے گلمرگ میں کرسمس منانے کے لیے آئے ہیں، جہاں پر بہت ہی ہسٹوریکل چرچ بنا ہوا ہے جو کہ بہت ہی سندر ہے دیکھنے میں۔ ہم یہاں پر یہی پرے کرنے آئے ہیں کہ کووڈ جلدی سے جلدی ختم ہو جائے۔ یہاں گلمرگ میں کوئی کرسچن نہیں رہتا ہے، یہاں میں مسلم ہی اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہوں۔ ہمارے مذہب میں بھی ہے ہر ایک دھرم کا ریسپیکٹ کرو، اسی کی بدولت میں بھی یہاں اس میں چرچ کو دیکھ ریکھ کرتا ہوں، اور مجھے کوئی پرابلم نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اس ونٹر کارنیول میں سرمائی کھیلوں کے ساتھ ساتھ مختلف تمدنی اور ثقافتی پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ اسکیئنگ، ATV بائک ریس، اسنو بائیکنگ، آئس اسکیٹنگ، اسٹریٹ فوڈ کے علاوہ گنڈولا سواری اس پروگرام کا حصہ ہے۔ نیوز 18 اردو کے لیے گلمرگ سے منیر حسین ہرا کی رپورٹ۔ جموں کشمیر ٹورزم نے سری نگر میں کرسمس کیک بنانے کے مقابلے کا انعقاد کیا۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ہوٹل مینجمنٹ سری نگر میں منعقد مقابلے میں نوجوانوں اور بچوں نے حصہ لیا۔ سیکریٹری ٹورزم سرمد حفیظ نے کہا کہ گلمرگ میں برف باری کے درمیان کرسمس شاندار طریقے سے منایا جاتا ہے۔ ڈائریکٹر ٹورزم کشمیر GN یتو نے کہا کہ اس طرح کے مقابلے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ بہترین کیک بنانے والوں کو نقد انعامات سے نوازا گیا۔ کرسمس پریئرز کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اس مقابلے کے انعقاد کے لیے محکمہ سیاحت کی کوششوں کی تعریف کی گئی ہے۔ اس
इस बार पहली बार you will see that Gulmarg जो है हमारी, which is of course the finest ski destination in the world, but other than Gulmarg, other areas, other winter areas will also be open. Pahalgam is open for winters. Sonmarg for the first time ever, because now the tunnel is connected through the tunnel. So first time ever Sonmarg will also be open. The hoteliers have made all preparations, everything required. They have winterized their hotels. They are all waiting for tourists to come, and we see a tremendous response from the people. We are quite confident कि जो आज यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने जिस तरीके की कारकर्दगी दिखाई है, इट्स रियली वेरी एनकरेजिंग. और टूरिज्म डिपार्टमेंट की ये कोशिश रहेगी कि इन लोगों को आगे भी हम प्लेटफॉर्म इससे भी ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म देंगे. इन्होंने ये प्लेटफॉर्म जो रखा है केक कंपटीशन का, बहुत अच्छा है ये केक कंपटीशन. इससे एक फ़ायदा ये है कि जो यंग एंटरप्रेन्योर है या कोई भी इस फील्ड से जो भी लिंक है इस फील्ड से, उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि अपना जो स्किल है दुनिया को दिखाए. अच्छा प्लेटफॉर्म है कि इसमें अपना स्किल दिखाए और अपना ये मतलब क्रिएशन कैसी है, अपनी हॉबीज़ कैसी है, अपनी आर्ट कैसे है, ताकि वो अपना कुछ डेवलपमेंट करे और एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस खोले. श्रीनगर में मारूफ सेंट ल्यूक्स चर्च में कल से क्रिसमस की दुआएं दोबारा शुरू होंगी. कश्मीर के कदीम तरीन गिरजाघरों में से एक सेंट ल्यूक्स चर्च को 30 साल के तवील अरसे बाद तज़ीनकारी के बाद दोबारा खोला गया. एसएमसी कमिश्नर अथर आमिर खान ने चर्च का दौरा किया और बहाली के काम पर इत्मीनान का इजहार किया. से फसाड है, चाहे एक्सटर्नल फसाड है, चाहे इंटीरियर फसाड है, इसका जो रूफ है दैट वाज कम्प्लीटली इन शैम्बल्स. तो उसको वापस रेस्टोर किया, और रेस्टोर करने में भी ये चीज़ कोशिश की है कि जब भी ओरिजिनली बना था 1896 में, उसी तरीके से इसको बनाया जाए. फॉर एग्जांपल अगर आप इसको 4 महीने 5 महीने पहले देखते, इसके वॉल्स पे अंदर किसी ने वैसे ही ग्रीन कलर वगैरह कलर का पेंट कर दिया था, विच वॉज नॉट एन ओरिजिनल थिंग. तो उसको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया और वापस से जो इसमें हमारे पास ब्रिक लाइम या जो मोटार का जो सुर्खी का जो सेटअप था उसको रेस्टोर किया गया. वादी कश्मीर में शदीद सर्दी के 40 रोजा यानी चलकलान जारी है. इस बीच जिला शोपिया के कई इलाकों में लोगों को बिजली और पानी के हवाले से मुश्किलात का सामना है. न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कई लोगों ने कहा कि इंतजामिया को मजीद बर्फबारी से काबिल इनकी मुश्किलात का इजाला करना चाहिए. पतम 15 दिन आब सार मजूर वजूर कर दोस आब सार सोन से भी गए दफ्तर वफ्तर तो सोन से बहुत यहाँ अब -9 तक चला गया है, तो हमें मुश्किल से ये चिल्ला कलान के दिन गुजारने पड़ते हैं. खासकर यहाँ सर्दी होती है, वो कड़ाके की सर्दी होती है, हड्डियों को जमा देने वाली सर्दी होती है यहाँ. इसलिए हम मेहरबानी करके डीसी शोपियान से अपील करते हैं कि पहले से ही बर्फबारी आने से पहले ही आप इसका अजाला कीजिए. यहाँ तो पानी की बहुत सी किल्लत है, तो मैंने एक्जन पीएचई को रुजू किया और उसको मैंने ये नोटिस में लाया कि लोग मर रहे हैं. अपनी मशीनरी को गेयर अप करके लोगों के जो पानी के मसले हैं उनको हल किया जाए. ये हमारा ये पहाड़ी जिला है, इस वक्त -8 चल रहा है शोपियान में, और बिजली का कोई सुविधा नहीं है, मुंह धोने के लिए उनको पानी नहीं है. तो लिहाजा इसलिए हुकूमत सरकार को इसकी तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए, बिजली की फराहमी को यकीनी बनाना चाहिए. नई दिल्ली में मुनक्कदा बैनुल-अक़वामी तालीमी अवार्ड 2021 तकरीब में जिला राजौरी के तहसील बुधल में दराज के डॉक्टर मोहम्मद असलम को स्कॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया. डॉक्टर असलम के आबाई गांव में मसरत का माहौल है. उन्हें यह अवार्ड कोरोना की वजह से लॉकडाउन के दौरान तहकीक के शोबे में मिसाली काम करने पर दिया गया. डॉक्टर मोहम्मद असलम ने कहा कि एक उस्ताद होने के नाते वो हमेशा प्राइमरी सतह पर तलबा को नई तकनीक और इख्तराई आइडियाज़ के साथ मयारी तालीम देने को तरजीह देते हैं. उन्होंने कहा कि वक्त का तकाजा है कि तलबा को बाज़ाब्ता तालीम के इब्तदाई मरहले में जिद्दत और टेक्नोलॉजी से मुतारफ़ कराया जाए. डॉक्टर असलम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर हैं. उन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पर एक किताब भी लिखी है. ये रिज्यूम भरा तो मुझे ये उम्मीद भी नहीं थी कि मैं ये अवार्ड जो है ये ले पाऊंगा. तो जब वो क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन जब इवेलुएट हुआ तो मेरे सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह जो पॉइंट्स थी वो इवेलुएट हो गए और मुझे उन्होंने रिसर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया. तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं बहुत फार फ्लंग एरिया से बिलोंग करता था. तो अब इससे मुझे एक तरह का और हौसला मिल गया, एक तरीके से और नया जज्बा मिल गया कि मैं
नेक्स्ट आने वाले दिनों में और ज़्यादा अच्छा करूं और इसी रिसर्च फील्ड को मैं अपना पैशन बनाऊं। राजा मोहम्मद अली शाह सबा बल्तिस्तान के उर्दू और बल्ती ज़बान के मशहूर शायर इंतकाल कर गए हैं। वो 105 बरस के थे। उन्होंने करगिल और बल्तिस्तान के सकाफत, तमद्दुन और यकजहती के हवाले से अपनी शायरी के जरिए एक पुल का काम अंजाम दिया है। करगिल में भी इनकी वफात को उर्दू और बल्ती ज़बान के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान करार दिया जा रहा है। लोग इनके अशार और गीतों को करगिल और बल्तिस्तान के सकाफत का एक बेमिसाल वर्सा मानते हैं। अवामी सतह पर इनकी वफात को लेकर काफ़ी रंजो गम पाया जा रहा है। इनके हक़ में दुआया मजालिस का इनकाद किया जा रहा है। पूरे रीजन को जोड़ने वाली शख्सियत थी। 105 साल की उम्र उनकी थी और 105 साल की उम्र में वो रहलत कर गए हैं। तो जाहिर सी बात है उनकी जो लिखे हुए कलाम है या उनकी जो शायरी है वो इस पूरे खित्ते के लोगों को हमेशा मुतासिर करती रही है। और एक ब्रिज के तौर पर सबा शिगरी साहब ने काम किया है। तो पूरे इस खित्ते के जो अदबी हलकों में उनका एक काफ़ी नाम था और एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत के तौर पर वो जाने जाते थे। पाक मक़बूज़ा कश्मीर के बेघर अफराद ने जम्मू में एहतजाज किया। मुज़ाहिरीन तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा मुतालबात को पूरा करने में हुकूमत की मुबैना नाकामी को लेकर बेहद नाराज़ नजर आए। इनका कहना है कि मोदी हुकूमत ने POJK के पनाह गुज़ीरों के लिए 2000 करोड़ रुपए मुख्तस किए थे, लेकिन शनाख्त का अमल इंतहाई सुस्त रफ्तारी से जारी है। इसके अलावा उन्हें इजाफी दस्तावेज़ात जमा करने को कहा जा रहा है। टीचर्स एसोसिएशन गुरेज के सदर शेख अखलाक इनकलाबी ने ऐसे रहबर तालीम असातिज़ा की मुस्तकिल का मुतालबा किया है जिनको एजुकेशन वॉलंटियर से रहबर तालीम असातिज़ा के तौर तब्दील किया गया था। शेख अखलाक के मुताबिक उन असातिज़ा को मुस्तकिल न करने की वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे EV कन्वर्टेड RTs जो अरसे दराज से रेगुलराइजेशन के मुंतज़िर हैं, क्योंकि अभी तक उनके रेगुलराइजेशन आर्डर्स इजरा नहीं किए गए हैं, वो एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं क्योंकि माहाना 3000 की तनख्वाह में उनके घर का खर्चा जो है वो नहीं चलता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर से मोतिबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि तरजीही बुनियादों पर इन असातिज़ा के आर्डर्स इजरा किए जाएँ ताकि असातिज़ा राहत की सांस ले सकें। अवंतीपुरा में पीने के पानी की किल्लत को लेकर लोगों ने महकमे PHE के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को भी बंद करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। लोगों का कहना है कि इलाके में 4 दिनों से पानी की किल्लत की वजह से वो परेशान है। इलाके में पानी लिफ्ट करने की स्कीम बार बार खराब हो जाती है। एहतजाजी अफराद ने पानी की सप्लाई को जल्द यकीनी बनाने की महकमे से अपील की है। जिला सांबा के जटवाल में फ्लाईओवर बनाने की मांग को लेकर एहतजाज किया गया। लोगों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी और जिला इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। लोगों का कहना है कि हाईवे की तोसी से उन्हें तकालीफ का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते हैं वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। उधमपुर को जराइम और चोरी की वारदातों से बचाने के लिए हर इलाके में CCTV कैमरे लगाने की मांग की गई है। इस ज़िम्न में उधमपुर चेयरमैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। चेयरमैन श्याम स्वरूप ने कहा कि साल 2016 में हर इलाके में CCTV कैमरा नस्ब करने की तजवीज़ मंजूर की गई थी, लेकिन इस पर अब तक अमल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र कैमरे लगाना बेहद ज़रूरी है।